Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt, your English teacher. I am going to deliver a lecture on the poem I Cannot Remember My Mother. This poem has been written by Rabindranath Tagore. This poem is about the sensitive and intense feeling of a child for his mother and also describes the importance of mother in one's life. The poet has lost his mother in his early childhood, so he remembers almost nothing about his mother. He does not even know how she looked like. However, he has faint recollection of her and few things like cradle song, smell of showy flowers, scent of morning service in the temple, stillness of his mother's gaze reminds him of his mother. Let's have a look on the poem I Cannot Remember My Mother. Here it goes. I cannot remember my mother. Only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. In these lines, the poet says that he cannot remember his mother, but he recollects his mother when tune falls over his ears. Sometimes, while playing with his toys, he senses a tune hovering over them. It is the tune of his mother's song, which she used to hum while rocking a cradle. इन स्टोर में शायर फरमाते हैं, I cannot remember my mother. मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता. Only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings. कहता है कि जब मैं खेल रहा होता हूं अपनी चीजों के साथ, खिलौनों के साथ, तो खेल के दरमियान मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक धुन मेरे इन खिलौनों के ऊपर छा रही है, मंडला रही है. तो यहां पे वर्ड आया हॉवर. हॉवर का मतलब है टू स्टे इन वन प्लेस इन द एयर, और वी कैन से टू हैंग इन एयर. उर्दू में हम कह सकते हैं मंडलाना, चक्कर लगाना. तो कह रहा है कि ओनली समटाइम्स इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले अ ट्यून सीम्स टू हॉवर ओवर माई थिंग्स. मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं खेल रहा होता हूं तो खेल के दरमियान मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक धुन मेरे इन खिलौनों के ऊपर मंडला रही है, चक्कर लगा रही है. द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग माय क्रेडल. ये धुन एक उस गीत की है जो वो गुनगुनाती थी व्हाइल रॉकिंग माय क्रेडल. जब वो मेरे झूले को झुलाती थी, तब झूला झुलाते वक्त वो एक सॉन्ग गुनगुनाया करती थी. तो कहते हैं कि ये मुझे उस सॉन्ग की वो ट्यून सुनाई दे रही है, उस गीत की वो धुन मुझे सुनाई दे रही है. यहां पे एक और वर्ड आया हम. हम का मतलब है टू सिंग इन अ लो साउंड, गुनगुनाना. तो अगर इस पूरे इन लाइन्स में शायर कहते हैं कि मुझे अपनी माँ की याद नहीं आती, या मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता, लेकिन जब खेल के दरमियान कभी कभी ऐसा मुझे महसूस होता है कि एक धुन मेरे चीजों के ऊपर, मेरे इन खिलौनों के ऊपर मंडला रही है. ये वही धुन है जो मेरी माँ मुझे झूला जलाते वक्त वो जो सॉन्ग गाती थी, उस सॉन्ग की, उस गीत की ये धुन है जो मुझे महसूस हो रही है कि जो मेरे इन खिलौनों पर मंडला रही है. I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of showy flowers float in the air, the scent of morning services in the temple comes to me as the scent of my mother. In these lines, the poet says that he cannot remember his mother, but whenever in the early autumn morning he smells the sweet fragrance of showy flowers, he recollects his mother, because his mother used to visit the temple with showy flowers for morning services. The scent of fragrance of morning services in the temple seems to the poet the scent of his mother. इन सतूर में शायर फरमाते हैं, I cannot remember my mother. मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता, but when in the early autumn morning the smell of showy flowers floats in the air. ये कहता है कि मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता, लेकिन खिजां के मौसम में जब सुबह सवेरे
शॉली फ्लावर्स की जो महक है वो जब हवा में चली जाती है तब मुझे अपनी माँ की याद आती है। द सेंट ऑफ मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल, सुबह जब मंदिर में पूजा होती है तो उसकी जो महक है तो वो मेरे पास आती है, comes to me as a scent of my mother। मुझे लगता है कि ये महक इस पूजा की नहीं है क्योंकि बल्कि ये महक मेरे माँ की, ये महक मेरे माँ की है। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है सेंट। सेंट का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, महक। I cannot remember my mother. Only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky, I feel the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. In these lines, the poet says that he cannot remember his mother, but whenever he sits at the window of his bedroom and looks at the distant blue sky, he remembers his mother. He recollects how she used to bend over him and gaze at him silently. At that time, the poet feels if mother is still looking at him from above the distant blue sky. इन सतूर में शायर फरमाते हैं, I cannot remember my mother। मैं अपनी माँ को नहीं देख सकता, मैं अपनी माँ को नहीं याद कर सकता। Only when from my bedroom window I send my eyes into the blue sky। लेकिन तब जब मैं अपने बेडरूम से खिड़की से उस दूर नीले आसमान की तरफ देखता हूं, I feel the stillness of my mother's gaze on my face। तो मुझे महसूस होता है कि चुपचाप मेरी माँ मेरी तरफ देख रही है, शौक से मेरी तरफ देख रही है, मेरी तरफ नजर जमा के देख रही है। Has spread all over the sky। और ऐसा महसूस होता है कि पूरे कायनात में, पूरे इस आसमान पे मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी माँ मेरी तरफ देख रही है और मुझे देखकर वो बहुत खुश होती होगी। तो इन लाइन्स में मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे शायर जो फरमाते हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि मैं अपनी माँ को ज्यादा जानता नहीं हूं, मुझे उसकी शक्ल याद नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसको याद करता हूं। वो मुझे तब याद आती है जब मैं अपनी खिड़की से बाहर देखता हूं नीले आसमान को जो बहुत दूर है, तो मुझे फील होता है कि मेरी माँ जो है वो चुपचाप करके मेरे ऊपर बैठी है या शौक से मुझे देख रही है और मुझे लग रहा है कि वो वहां से मुझे बड़े शौक से देख रही है और मुझे देखकर वो खुशी महसूस कर रही है। तो इस पोएम में हमने देखा कि एक बच्चे को एक माँ की कितनी जरूरत होती है। एक बच्चा जिसने अपनी माँ को नहीं देखा है लेकिन फिर भी उसकी वो छोटी छोटी यादें उसके जहन में है। दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर इन वन्स लाइफ। थैंक यू।